السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز طاہرہ رباب صاحبہ ہمبرگ سے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ آج ایک بڑا اہم ایشو ہے، لطیف کھوسہ کی میں آج گفتگو سن رہا تھا۔ عمران خان لطیف کھوسہ سے ملے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے، اور عمران خان نے کہا کہ آپ میرے کیسوں میں مدد کریں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ اسے قتل بھی کروا دیا جائے گا، اور یہ بھی اس کو فکر ہے کہ مجھے گرفتار بھی کیا جائے گا، اور ہر صورت میں جو کچھ بھی پاکستان میں تحریک انصاف جدوجہد کر رہی ہے اسے کچلنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا بھٹو والی جو تحریک ہے دوبارہ دہرائی جائے گی، جس طرح بھٹو کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ وہی لوگ ہیں، وہی ٹیم ہے، ان کی نسلیں اب یہ کام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جی، آپ کا جو سوال ہے اسی کے پیرائے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے برادر عزیز، پروردگار عالم نے اس کائنات کو جب بنایا، سجایا، مرتب کیا ہے تو بہت خوبصورت سا پروگرام ہے، سسٹم ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی تضاد جس کو ہم روز اول تجنید کہتے ہیں، وہ منفی اس لیے ساتھ میں ہے تاکہ ہم پروردگار عالم کے تائب اس زمین پر جدوجہد کریں۔ فعل اپنے کا مختار ہم کو بنایا تاکہ ہم کامل جدوجہد کے بعد توفیق الہی کو حاصل کر کے کامیابی اور مثبت کی زندگی کو آگے بڑھا کر نظام یونیورس کو استحکام دیں جو گردشوں سے چلتا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس میں وہ چونکہ تضاد اس کے مقابلے پہ ابلیسیت پوری شدت سے موجود ہے۔ بھٹو کو قتل کیا گیا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ایک سوشل میڈیا پہ باتیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتی تھی، اندھیرے کمروں میں کب کیسے کیا ہو گیا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تھوڑی بہت خبریں کیونکہ آپ کو معلوم کہ اس وقت بھی خبروں کو تو چھپایا ہی جاتا تھا، ہر چیز جو مارنے والے تھے ان کے اختیار میں تھی، لیکن حیف اور افسوس یہ ہے کہ اس مظلوم کا بھرم اس کے خاندان نے نہیں رکھا۔ ان کا ہے نا جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اگر ان کا خون، ان کے یہ رشتہ دار عزیز حق پرست ہوتے تو اس خون کو رائیگاں نہ جانے دیتے۔ انہوں نے بلکہ وہی عمل کیا جو بھٹو کے ساتھ اس کے دشمنوں نے کیا، اور وہ آنے والے لوگوں کو اسی طرح اسی ماحول اور اسی رد عمل سے ختم کرنے، پامال کرنے کے وہ اس سے زیادہ مشتاق نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ سلسلہ حق پرستی جو یا سچائی یا عوام کی درد کی بات تھی وہ اب وہاں پہ مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اب جو سلسلہ ہے وہ وہی لوگ جو ان کی باقیات آج باقی آنے والے ان کے بعد ہیں، انہوں نے ان کے مخالف اصولوں کو اپنا کر کھڑے ہو کر ان کی پوری قربانی کو پامال کر دیا ہے، بے نظیر کی بھی اور ان کی بھی، کیونکہ حالات وہ نہیں رہے تھے، سلسلے وہ نہیں رہے تھے، اس لیے حالات اور کے اور ہوتے گئے، اور آج وہ مقام آ گیا کہ ہمارے جناب عمران خان صاحب کو اسی کشت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن برادر آپ کے اس معتبر اور نہایت ہی معزز اور میں کہتی ہوں کہ میچور چینل سے میں یہ بات عوام الناس تک پہنچانا اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ ایک تو یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہر وقت ہر لمحہ اوپن ہے، جتنا بھی اس کو چھپانے کی کوشش کریں، پاکستان میں جو نظام اور سلسلہ ہے وہ اس وقت انسانیت سے بالکل خالی ہے۔ حکومت اور جو اس کے اعلی کار ہیں وہاں پہ نہ تو کوئی انسانوں کی وہاں پہ کوئی مد نظر رکھی جا رہی ہے، اہمیت ہے، اور نہ ہی کسی قابل انسان کو پاکستان جیسے ملک کے لیے وہ متوجہ ہو رہے ہیں، وہ آمادہ ہیں اس طرف ان کا خیال کیا جائے۔
ना ही वो पाकिस्तान की किसी तरह की भी बेहतरी, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए कोई अमल कर रहे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है, रस्साकशी चंद लोगों ने अपनी ज़ात के लिए अवाम का कत्ल आम किए चले जा रहे हैं। यहाँ बात तब की जाए मुबारक साहब जबकि बात अवाम और किसी मुल्क की हो, तब बात की जाए। यहाँ बात मुल्क की नहीं हो रही, यहाँ चंद गिने चुने उंगलियों पे लोग हैं, उनकी अजारादारी की, गुंडागर्दी की बात है और उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क और मुल्क के वासियों को यरगमाल बनाया हुआ है। उससे निकालने के लिए आपको एक ऐसा जमा मर्द चाहिए, एक मर्द मोमिन चाहिए, एक खुदा का मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा चाहिए जो इस मखलूक खुदा को इन दरिंदों से बचाकर निजात देकर इस मुल्क की बका के लिए सिलसिला रवा कर सके। ये फर्क है उन दोनों में, भुट्टो में भी और इमरान खान साहब में भी। और जहां तक बिल्कुल ये खदशा है क्योंकि उन्होंने पूरे ये प्लानिंग बनाई हुई है कि इनको कत्ल किया जाए या इनको नजरबंद किया जाए, लेकिन मुबारक साहब एक प्लानिंग, एक चाल लोग चलते हैं, खुदा कहता है, और दूसरा प्लान यानी दूसरी जो हम उनके साथ चाल चले वो उससे बड़ी चाल थी। अच्छा, इसलिए जी सॉरी, एक सवाल है क्योंकि टाइम कम होता है, सवालात भी करने होते हैं, इसलिए आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ माशाल्लाह बताया। एक 72 साल का बंदा हो, उसको रोजाना इस्लामाबाद बुला लिया जाए लाहौर से, फिर वो सारा दिन उसे खज्जल खराब करके वापस भेजा जाए, मेरा ख्याल है कि उसका मकसद भी नहीं होता, सिर्फ एक तारीख देनी होती है कि आप फलां तारीख को फिर आ जाए। आज जदीद दौर है, आप वीडियो लिंक के जरिए भी सब कुछ कर सकते हैं, तो ये क्यों इस तरह कोई साजिश जो चल रही है, इस बार जजों को क्यों नहीं होश आ रही? जी मुबारक साहब, देखिए वो कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है ना, नाकाम हो जाता है, तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। तो उनके पास कोई रास्ता, कोई हल नहीं रहा और वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम इस मर्द मोमिन को थका देंगे, इसको हरा देंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन वो कभी भी कोई राह नहीं पा सकते। और मैं ये बताती चलूं कि जितनी भी साजिशें, जितनी भी उनके रास्ते में दीवारें और पत्थर खड़े कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी एनर्जी ऑफ पावर को मफलूज करके अपने सिस्टम ऑफ लाइफ को खुद डैमेज कर रहे हैं। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, मेरे अल्फाज याद रखिए, महफूज कर लीजिए, ज्यादा दूर वक्त नहीं है कि इमरान खान सुरखरू होंगे और जितनी भी निजात इकट्ठी की गई है ये सब की सब इनको पलट के मिलने वाली है। सवाल ये है कि जजों को होश क्यों नहीं आ रही? तो आपने बहुत अच्छा फिक्रा कि उनको होश क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनको सुनाया गया है, उनको सुना दिया गया है, उनको धमकियों से, उनको जोर से, उनको गुंडागर्दी से, इस इजारादारी से मजबूर किया जाता है। वो नहीं बोल पाते, लेकिन यही जुल्म की वो इंतहा है जहां पे काजी शरा या काजी वक्त अपने उस फर्ज से इस कदर बेखबर और बेबहरा हो गए हैं कि वो नहीं जानते कि अगला लम्हा वो जिंदगी की किन अजियतों में खुद उतरने वाले हैं। इमरान खान को कोई भी तब तक नहीं मिटा सकता जब तक कि खुदा ना चाहे, और खुदा का चाहना और इन मफाद परस्तों का चाहना दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अहम मसला है। आजकल वकला की तहरीक तो चल रही है, जिस तरह आपने कहा मीडिया पे पाबंदी है, मगर सोशल मीडिया पे वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इमरान खान का नाम पहले तो टीवी चैनल पे नहीं लेने की इजाजत थी, आप ये सियासतदान भी नहीं लेते, ये नाम ना लेने से क्या इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाएंगे? जी देखिए ना, वही मैंने कहा ना, जब इंसान हार गया होता है ना तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो वो ऐसे ओछियत कंडों पे उतर आता है। तो उसका नाम ना लेने से उस इंसान की कदर और इज्जत और बढ़ा दी गई है, क्योंकि हर इंसान ने जान लिया है कि दुश्मन कितना छोटा और बोना है। दुश्मन की जितनी भी कोता कद
अमाल और उसका किरदार सामने आ रहा है, उसकी हिस्ट्री सामने आ रही है, इतना ही वो मुतनफ़र अपनी ज़ात से लोगों को कर रहा है और इतना ही मुहिब बना रहा है। इमरान खान साहब का बहुत अच्छा किया इन्होंने। इससे मुहिबाने इमरान खान के लिए एक फायदा ये हो गया कि हर वक्त की गिलाज़त उनके साथ नाम ले लेकर जो बयान की जाती थी और उनके चाहने वालों को उसकी अजियत होती थी, उससे बच जाएंगे। अच्छा किया उन्होंने। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ में तो इस वक्त मरियम गुजर रही है, क्योंकि उसकी तो तकरीर ही मुकम्मल नहीं होती थी। एग्जैक्टली उसकी भी, और जो दूसरे आके बैठ जाते हैं, आप देखें उनके बयानों में ये अपने आप को लीडर बना के पेश करते हैं, आ जाते हैं स्पीचेस में अपने बयानात में और देते हैं कि जी हम हुक्मरान हैं, हम बड़े हैं। उनकी गुर्बत आप देखिए, उनका छोटापन देखिए, उनकी तरबियत की ये मखदूश कटी फटी लाश देखिए कि वो अपने आप को इस कदर मजरूह करके बैठे हैं कि पूरी आवाम हंस रही है, उन पर नफरत कर रही है और वो समझ रहे हैं कि वो शायद इस तरह अपनी जाती हवस की तस्कीन को वो समझ रहे हैं कि वो उनकी कामयाबी है। ये उनकी कामयाबी नहीं, उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। आज तक दुनिया में लोगों ने ये समझा था कि वाक़या करबला के बाद शायद हुसैन को हमने खत्म कर दिया। हुसैन कयामत तक पूरी कायनात के दिलों में जिंदा है और यजीद नफरत लेता है। और अगर आज भी कोई उसका हवारी पैदा हो जाता है यजीद का, तो पूरी दुनिया उस पर लानत की वो एनर्जी भेजती है जो उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी, मरने के बाद भी रूह एक ईस लेकर जाएगी साथ में। ये कुदरत का निजाम है भैया जी। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि पिछले दिनों एक कश्ती जो हादसे का शिकार हुई, आप से मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि ये जर्मन लोग क्यों नहीं इस तरह शिपों में कहीं जाते, हॉलैंड के क्यों नहीं जाते, ये हमारे लोग ही जाते हैं? क्या हम 75 साल से अपने लोगों को कोई ऐसी सहूलत नहीं दे सके कि दूसरे ममालिक में हमें ये तलाश करने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती, जान से जाना पड़ता? जी भैया, आपको तो मालूम है एक हमारा ही तो मुल्क है जो दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है, उसका एक एक बासी। कल एक कोई इंसान टीवी देख रहे थे तो मैं उनको देख रही थी कि वो एक ऐसे पाकिस्तानी है जो जर्मन से मोटरसाइकिल पे पूरी दुनिया के टूर करता है। तो वो इंडिया का टूर करते जैसे ही वो पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सा पुरशको सा मंजर था और जो लोग उनको रिसीव कर रहे थे, पढ़े लिखे काबिल सुलझे हुए तनोमंद बा तहजीब बा किरदार के सब, मैंने कहा देखो ये है पाकिस्तान की अवाम जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये पाकिस्तान सोना है, ये इतना अच्छा मुल्क है और इसकी जमीन और इसमें हर चीज मौजूद है। अगर ये जो ऊपर बैठे हुए चोर लुटेरे और ये मुजरिम लोग इस मुल्क से हट जाएं, ये बिच्छू निकाल दिए जाएं, तो कोई इमरान खान जैसा आए तो ये मुल्क पूरी दुनिया में अपनी हैसियत और हकीकत वो बना के रखे कि वो जैसा कहा करते थे कि लोग यहाँ पे काम ढूंढने आएंगे। इन लोगों को रुलने की और बर्बाद होने की और जिंदगियां, ये सारी कत्लो गारत इस वक्त के इस टोले के सर पे आती है जिन्होंने इस मुल्क के बासियों को जिंदगी जीने का तसव्वुर भी उनसे छीन लिया और अजाब बना दिया, उनसे छीन ली है सुकून की जिंदगी। ये इन्हीं का कसूर है और पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड होकर रुल रहे हैं जी। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, एक मैंने तो वैसे इस पे प्रोग्राम किया, मैंने कहा आपसे भी राय लेता हूँ। कल एक प्रोग्राम मुज़ाकरात है पाकिस्तान में, शायद आपने सुना कि एक लड़की है, उसने कहा कि जो तारकीन वतन है वो बैरून मुल्क जाके वाशरूम साफ करते हैं। आपका इसमें क्या ख्याल है कि ये अल्फाज कहने की क्या जरूरत थी? उस पे फिर बड़ी ज्यादा शोर सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, वो वाशरूम साफ करते हैं, वो धोते हैं, वो जो मर्जी करते हैं, वो मेहनत करते हैं जिसको इस्लाम ने इज्जत दी है, वकार दिया है। तुम लोग अपने वाशरूम नहीं धो सकते, तुम लोग इतने बेकार हो, अगर वहां पे इतनी भी अहलियत नहीं है। यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री में एक दफा जब काम कर रही थी तो हम लोग जब अपना दोपहर के ब्रेक में खाना खाते थे तो जो हमारा सबसे बड़ा मिनिस्ट्री का क्रिमिनल पुलिस का बॉस था, हम लोग सारे एक टेबल पे खाते थे और उसके बाद वो अपनी प्लेट और अपना कॉफी का कप खुद धोता था।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता खुद रिपेयर करते थे, जानते हैं, वो अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगाते थे। ये खुदा के बंदों की सिफात में शामिल है। वो अपने पेट के लिए अगर वॉशरूम साफ करते हैं तो अपने अजीज और अकारिब को रोटी देते हैं, वो अमल करते हैं जिस पर खुदा उनको रहमत नाजिल करता है। जी और आप लोग जो बैठ के दूसरों के ऊपर अपनी चौधराहट नाजिल करते हैं और समझते हैं कि हम हुक्म दे के बड़ा काम कर रहे हैं, वो खुदा के मुकर्रब नहीं, दूर होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वाह। टाइम दिया। और भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। आपके प्रोग्राम लोग पसंद करते हैं। अपना ख्याल रखें। बस थैंक यू। बस नाज़रीन, मुझे वॉशरूम से एक बात याद आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का किस्सा आप सब ने सुना होगा। कोई मेहमान आया और वो अपना गंदगी कर गया बिस्तर पे, तो आपने देखा कि उस मेहमान को बुरा भला नहीं कहा गया। ये मिसाल बेशुमार दफ़ा आपने सुनी, मैंने मुझसे इसलिए बताई कि टाइम ख़त्म हो चुका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।